Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. In yesterday's class we have stopped at example number 4. बस डिस्कस कर रहे थे तभी क्लास टर्मिनेट हो गई थी. Let's continue from there. Coming to example number 4. In example number 4 the question is like state whether the given pair of terms are like or unlike. आपको एक पेयर दिया हुआ है and you have to tell whether this pair is a like term or else these are unlike terms. तो ये कैसे हैं, like terms हैं कि unlike terms हैं? Anyone please, ये like terms होंगे कि unlike terms होंगे? See here I have said that अगर यहाँ पर variables कैसे हैं आपके सेम हों, वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, सेम. अगर वेरिएबल सेम है देन इट मीन्स इट इज़ अ लाइक टर्म. अगर वेरिएबल सेम नहीं है, डिफरेंट है, देन इट मीन्स कैसे हैं वो, अनलाइक टर्म्स हैं. बट हियर यू कैन सी दैट बोथ आर कांस्टेंट टर्म. 6 भी आपका एक कांस्टेंट टर्म है, हियर देयर इज़ नो वेरिएबल. एंड इवन 99 इज़ अ कांस्टेंट टर्म. 99 भी क्या है आपका एक कांस्टेंट टर्म है. यहाँ पर भी आपका क्या है, कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है. इट मीन्स बोथ आर अलाइक, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं. सो वी कैन से दैट 6 एंड 99 बोथ आर लाइक टर्म्स. दोनों कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. द थर्ड बिट ऑफ द सेम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 का थर्ड बिट देख लो. 12ab and 12a square b square. Here we are given with two terms 12ab and 12a square b square. अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो वेरिएबल्स क्या है, a और b हैं. Here we have two variables, variable a and b. But here sorry, we have four variables a, b and b. तो क्या ये लाइक होंगे या फिर अनलाइक टर्म्स होंगे? Yes, unlike होंगे because here variables are not same. In this case we have only two variables, one a and one b, but here we have four variables, two a's and two b's. That's why these two are not alike. ये दोनों एक जैसे नहीं हैं. That's why these two are unlike terms. Like terms और unlike terms clear है? Moving on to example number 5. Question says that identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials in the following. So first of all, could you tell me what are monomials? Monomials क्या होते हैं? जिनकी एक टर्म हो, ओनली वन टर्म. ओके. बाइनोमियल्स क्या होते हैं? which has two terms. Trinomials, three terms. And quadrinomial. And what are polynomials? Yes, which has one or more terms. Yes, which has one or more terms, those are polynomials. So here we have to classify them, either they are monomial, binomial, trinomial or else quadrinomial. So in the second bit you can see that here we have, this is our first term, this one is our second term, this is our third term. So how many terms are there? So number of terms are 3. So if in any algebraic expression we have 3 terms, then उसे हम लोग क्या बोलते हैं? So this is a trinomial. In case of 6xy, how many terms are there? Yes, we have only one term because this is not separated by any plus or minus sign. यहाँ पे कोई भी प्लस और माइनस साइन आपको नहीं दिख रहा है. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स है? We have one and only one term. And so the expressions which are having only one term is called as
Yes, we call such expression. Moving on to example number 6. In example number 6, the question is like, write the following cases in the form of algebraic expressions using using numbers, variables and signs of basic operations. बोल रहा है जो आपके algebraic, जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसको इन द फॉर्म ऑफ algebraic एक्सप्रेशन लिखना है. तो एक स्टेटमेंट देख लेते हैं. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर. फाइन. यस, एग्जाम्पल नंबर 6 में पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ नंबर 7 एंड x. द सम ऑफ number 7 and x. Now how could you write it in form of algebraic expression? कैसे लिख सकते हो sum of 7 और x को? कैसे लिखोगे मैथमेटिकली? sum of 7x लिखेंगे, मतलब you mean to say that ऐसे लिखेंगे? Anyone else please? If I ask you what is the sum of 2 and 5, if suppose I ask you what is the sum of 2 and 5, what will be your answer? So you will say that 2 plus 5. So if I am saying the sum of 7 and x, so what will be the sum of 7 and x? Yes, exactly, it is not 7x. 7x means you are multiplying 7 and x. इसका मतलब क्या हो गया? आप 7 और x को मल्टीप्लाई करो तो 7x नहीं होगा, इट इज़ 7 प्लस x. क्लियर है ये? इन द सेकेंड बिट यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन एज 1/3 ऑफ x. 1/3 ऑफ x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाई 1/3? 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है. ऑफ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस? ऑफ की प्लेस पे आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हो? येस, ऑफ ऑलवेज मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ऑफ का मतलब क्या होता है? मैं बॉड मास रूल में भी मैंने बताया था आपको. ऑफ का मतलब है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. तो ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई. एक्स मीन्स हियर जस्ट सिंपली राइट इट एज एक्स. सो 1/3 ऑफ एक्स मीन्स एक्स बाई 3 और एल्स 1/3 ऑफ एक्स. ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसे भी सही है. क्लियर है ये? थर्ड बिट देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है. इट्स ऑफ सेम काइंड बट इट्स बिट डिफरेंट. 1/4 ऑफ द सम ऑफ 1/4 ऑफ द सम ऑफ a एंड b. अब इसको ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 का मतलब क्या है? यस, 1/4 का मतलब 1/4. ऑफ का मतलब इनटू. एंड सम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली, सम ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया a प्लस बी. सो हियर वी गॉट द आंसर एज ईदर a प्लस बी बाई 4 और एल्स यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो. ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर है ये? हो जाएंगे. अब ऐसे स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिख लोगे. ओके, कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 7. Look at the example number 7. Change the following algebraic expression to statement in words. अब सेम उसी का उल्टा करना है. अभी हमने क्या किया? स्टेटमेंट्स दिए थे, उनको algebraic expressions में कन्वर्ट किया. अब आपको क्या दिया है? algebraic expressions दिए हैं, उसको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है. तो पहला algebraic expression आपको दिया है 3x प्लस वाई. तो इसमें देखो, पहले हमने क्या किया है, इसको अलग अलग देख लो. ये क्या है? आपका सम ऑफ एक्स एंड वाई है.
ये आपका सम ऑफ x एंड y है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 3 टाइम्स 3 का मतलब 3 टाइम्स हो सकता है, और यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ऑफ यूज़ कर सकती हूँ. सो वी कैन से दैट 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ x एंड y. क्लियर हुआ कैसे किया इसको? और इसको नॉर्मली 3 टाइम्स दी सम ऑफ x एंड y भी लिख सकते हो. क्लियर है स्टेटमेंट ये? सेकेंड वन जैसे लिखा है आपका z इंटू एक्स, तो इसको तो डायरेक्टली बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ z एंड x, और इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल z एंड वेरिएबल x. ये क्या है आपका? डायरेक्टली प्रोडक्ट है दो नंबर्स का. थर्ड वन देख लो, 3/4 x प्लस वाई. अभी हमने ऐसे ही स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाया था, तो x प्लस वाई क्या हो गया आपका? सम ऑफ x एंड y हो गया. 3/4 क्या हो गया? इसको 3/4 को क्या लिख सकते हो? 3/4. वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको? 3/4. बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो 3/4 ऑफ सम ऑफ x एंड y. क्या हो गया? 3/4 ऑफ सम ऑफ x एंड y. क्लियर है ये? ठीक है, एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं. मैं क्वेश्चंस लिखूंगी, आंसर आप करोगे, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल्स. लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7.1. जस्ट अ मिनट. मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 7.1. फर्स्ट क्वेश्चन, the first question is like write the terms of each of the following algebraic expressions. आपको इन algebraic expression की terms बतानी है. 6th bit देखो, 4x² y² minus 7xy plus 4. So first of all, could you tell me how many terms are there? इसमें कितनी terms है total? Yes, we have 3 terms in this expressions. Now can you tell me what are those terms? वो terms क्या हैं आप बता सकते हो मुझे? फोर x² y² is your first term, minus 7xy is your second term, and 4 is your third term. सही है? एक और देख लेते हैं. बिट नंबर 3 देख लो. a³ minus ab plus b². So how many terms are there in this expression? How many terms are there? Yes, we have 3 terms. So what are those terms? What is the first term? Exactly, very good. First term is a³. What is the second term? Yes, minus ab. Yes, plus b² is your third term. We have 3 terms. Very good. It means you understood the concept. आपको terms का concept समझ में आ गया है. Moving on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. आपको बताना है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है. लेट्स टेक द सेकेंड बिट. x² minus 4x plus 7/9. So first of all tell me how many terms are there? Okay, what is the first term? Second term?
थर्ड टर्म, ओके, से प्लस 7/9। सो व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं? यस, द न्यूमरल वैल्यू, द टर्म विच डज नॉट हैज़ एनी वेरिएबल, जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। सो अमंग दीज थ्री विच वन इज कांस्टेंट? यस, 7/9 में कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है आपको? इन दिस केस विच वन इज़ द कांस्टेंट टर्म? इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट टर्म कौन सा है तो कौन सा वाला होगा? यस, 4 इज़ द कांस्टेंट टर्म। 4 जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो 4 के साथ में कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो 4 कैसा है आपका? कांस्टेंट टर्म। इस वाले केस में आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा है? सेकेंड बिट में, सॉरी दिस क्वेश्चन में, इन द थर्ड बिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज द कांस्टेंट टर्म? वी डोंट हैव एनी कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक्सप्रेशन में नहीं है। क्लियर है ये? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई दी मोनोमियल्स बाय, ये तो बता लोगे अब, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स कौन से हैं? हो जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 4, you have to write down the coefficient of x in each of the following। आपको कोफिशिएंट बताना है किसका? x का बताना है कोफिशिएंट हर एक क्वेश्चन में। तो बताइए आप, सेकेंड बिट 15xy³ में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 15 और y³ होगा। अच्छा, -7/2ax में, इसमें आपने बोला 15y³ होगा कोफिशिएंट ऑफ x। सो इन -7/2x आपका कोफिशिएंट x का क्या होगा? यस, -7/2a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं? इस x के अलावा बाकी जो भी बचा है वो आपका कोफिशिएंट। तो x को हाइड कर देंगे तो क्या बचा? 15y³। यहाँ पर x को हाइड कर देंगे तो क्या बचा? -7/2a। तो x के अलावा जो रिमेनिंग जो भी वहाँ पे वेरिएबल या कांस्टेंट लिखा होता है दैट इज़ योर कोफिशिएंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू द स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे है x/y - 6, तो इसको कैसे लिख सकते हो? x/y को देखो कैसे लिख सकते हैं? कोशिएंट ऑफ x/y। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको कोशिएंट मिलेगा। कोशिएंट, यस एग्जैक्टली, कोशिएंट ऑफ x एंड y इसको लिख दोगे और उसमें से क्या 6 क्या कर रहे हो? इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हो। तो स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा? सबट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम कोशिएंट ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। क्लियर है? इस तरह से स्टेटमेंट्स बना लोगे सेपरेट करके। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या समझ में नहीं आया? इफ आई डिवाइड 4/2, 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट क्या आएगा? 2 आएगा। कोशिएंट बोलते किसको हो? ये यहाँ पे जो जितने टाइम्स जा रहा है कोशिएंट इसी को बोलते हो। तो इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा। इसी को कोशिएंट बोलते हैं। तो कोशिएंट ऑफ x एंड y हो गया, इसको डिवाइड करने पे मिलेगा। एंड सबट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम कोशिएंट ऑफ x एंड y, मतलब 6 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। किस में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम द कोशिएंट ऑफ x एंड y। अभी क्लियर है?
ओके, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. Question number 6 is identify the like and unlike terms in the following. You have to identify the like and unlike terms. थर्ड बिट देखो. like terms होते क्या है पहले वो बताओ. What are like terms? Yes, exactly. Terms having same variable. जिन terms में same variable हो उन्हें बोलते हैं हम लोग like terms. तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पर पहले टर्म में वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई, तो किसी और टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है? किसमें है? एक्स स्क्वायर वाई किसी और टर्म में है? मतलब इसका कोई भी साथ में नहीं है. एक्स वाई स्क्वायर किसी टर्म में है? एक्स वाई स्क्वायर किसी टर्म में है? Am I audible to you people? एक्स वाई स्क्वायर किसी टर्म में है? देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू बी स्क्वायर जेड किसी टर्म में है? और ये तो फिर लास्ट में डिफरेंट हो गया. इट मीन्स ऑल दीज आर अनलाइक टर्म्स. ये सारे कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो. बिट नंबर 5. 9ab स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर कॉमा ab स्क्वायर. वी आर गिवन विथ 3 टर्म्स, 9ab स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर एंड ab स्क्वायर. सो यहाँ पर वेरिएबल्स देखते हैं. ab स्क्वायर है यहाँ पर भी ab स्क्वायर है, यहाँ पर भी ab स्क्वायर है. इट मीन्स ऑल दीज 3 टर्म्स आर हैविंग द सेम वेरिएबल. इन तीनों ही टर्म्स में हमारे पास क्या है? सेम वेरिएबल्स. इट मीन्स ऑल दीज 3 आर लाइक टर्म्स. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी इसमें आपको बताना है, फिर से आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स कौन से. इसमें क्या था, सारे ही लाइक टर्म्स बस आपको बताना थे, सब लाइक टर्म्स हैं. यहाँ पे आइडेंटिफाई करने कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं. सो फर्स्ट बिट देखो. 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करके बताना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं. तो देखो पहला टर्म देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर कहीं और पर रिपीट हो रहा है? यस, रिपीट हो रहा है. कहाँ? जो थर्ड टर्म है वहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल एक्स स्क्वायर है. इट मीन्स 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर बोथ आर लाइक टर्म्स. 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैसे ही हैं? लाइक टर्म्स हैं. इसका एक और बिट देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 का 4th बिट देख लो. एक्स स्क्वायर वाई जेड कॉमा वाई एक्स जेड स्क्वायर. थर्ड टर्म इज एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड फोर्थ टर्म इज 6xy z square. Now you have to identify the like terms. सो फर्स्ट टर्म देखो है आपका 6x स्क्वायर वाई जेड. एक्स स्क्वायर वाई जेड कहीं और पर आ रहा है?
एक्स स्क्वायर वाई जेड नहीं आ रहा है। ओके, देन वाई एक्स जेड स्क्वायर, कहीं पर वाई एक्स जेड स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो कहाँ आ रहा है। यस, इन द लास्ट टर्म यू कैन सी वाई एक्स जेड स्क्वायर, यही 3 वेरिएबल्स यहाँ पे भी हैं, यही 3 वेरिएबल्स यहाँ पे भी हैं। सो वाई एक्स जेड स्क्वायर एंड 6x वाई जेड स्क्वायर बोथ आर लाइक टर्म्स, दोनों ही कैसे हैं आपके? लाइक टर्म्स हैं। क्लियर हुआ ये? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operations। आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको इनके algebraic expressions लिखने हैं। देखते हैं फोर्थ बिट, देखो 8 added to twice the product of x and y। पीछे से देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब क्या हुआ? यस, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई? यस, 2 times the product of x and y। now 8 is added to, 8 किस में ऐड किया जा रहा है? इस पूरे में 8 को ऐड कर रहे हैं, तो 8 is added to, आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया? 8 + 2xy। क्लियर है? इस तरह से ब्रेक करके आप अगर एक ही बार में सोचोगे बना दो स्टेटमेंट तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ऐसे ब्रेक करके बनाओगे स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस तो इजीली बन जाएंगे। जैसे 5th वन देख लो, लुक एट द 5th बिट, 6 added to the difference of x and 2y, 6 added to difference of x and 2y। so first of all what is the difference of x and 2y? x and 2y का डिफरेंस क्या आएगा? x - 2y हो गया डिफरेंस ऑफ x and y, x and 2y। अब 6 इज एडेड टू डिफरेंस ऑफ दिस थिंग, 6 को हम ऐड किस में कर रहे हैं? इसके डिफरेंस में ऐड कर रहे हैं, तो 6 इज एडेड टू डिफरेंस ऑफ x एंड 2y। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, 2y - x भी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब अब हमें पता नहीं है कि डिफरेंस किसका बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है इसमें नंबर, बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स, तो आप इसको 2y - x भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। क्लियर है ये? ओके, ठीक है।